my dear students, to the YouTube series of the JEE Advanced Aspire. Again, Vedantu Master Classes is a classic fusion of the best of teachers and the best of technology. If you are new here, if you haven't yet subscribed to our channel, please hit the subscribe button and also remember to press on the bell icon because that will notify you. It's very important. Okay, now my dear students, for all the new students out there, my name is Namo Kaul. I'm the Master Teacher of Physics at Vedantu. Let me tell you a little bit about myself. I'm the proud inventor of Turbo Math, which is one of the most successful courses in the country. I'm very happy to tell you that I've taught and mentored to 50,000 plus students in the last 9 years. I've also been certified by the Indian Association of Physics Teachers, and by God's grace and your love and support, I was also invited at the National Teachers Conclave in 2018, and there I was awarded for best teaching and pedagogy. It was a life-changing moment. But let me tell you, my dear students, all these things are not the reason I'm here. The only reason I'm here is because I love all of you very much and I love the subject, and we have to spread this love. And to do that, my dear students, I've created a classic playlist for all of you to fall in love with physics. So again, it's a simple URL. Please make a note of it. And you know the best part? You can access this playlist from your mobiles anytime, anywhere. It's a simple link, tinyurl.com from your mobile browsers /JEE Physics. Okay, वहां पे play now का button आएगा, and with that you can enter into the playlist. Okay, so there you will have a lot of master classes of physics and they will give you a very good perspective about each topic. Okay, I'm also adding 12 standard topics very soon. So again, keep checking this. It's tinyurl.com /JEE Physics. And again, the only reason I created this is because many of the students got in touch with me personally. They got in touch with me on multiple social media channels, mails and whatnot. And I had to give an answer to that. Okay, so I've been trying to do that for years, and here it is, my dear students. Okay, so let's get started. Today's challenger problem, which we will discuss in the end, please have a look. So this is the problem right in front of you. इसमें क्या है? एक तार है. ये this is a wire of mass m, and you have to tell me इस wire में tension at the center क्या होगी? That is what you have to find out. So please make a note of this problem. You can take a snapshot. These are the options. We are going to discuss how this will be solved by in the rockstar way. And let me tell you why we have taken this problem. And obviously, you know, at Vedantu Master Classes, we have tried and tested content. So this was one problem where single digit rankers used to stumble, especially in the exam setup. They didn't spend a lot of time on this, and that is why we have got this problem right here for you. So this is the challenger problem. Let's have a look at some problems. We'll get back to this. The very first problem for you today is on your screens. Okay, here, यहाँ पे क्या दे रखा है? This is a semicircular track. ऐसा कुछ है. And this is accelerating like this. तो ये जब एक्सेलरेट करेंगे तो ये मास ऊपर उठेगा, ऑब्वियसली उठेगा, राइट? उठेगा ना? अब क्यों उठेगा बताएंगे. ओके, सो ये उठेगा. सो बाय द वे, एवरीवन थिंक ऑफ दिस लाइक अ एरोप्लेन. एरोप्लेन जब एक्सेलरेट करता है, रनवे पे एक्सेलरेट करता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है. व्हाइल कांस्टेंट वेलोसिटी इज यू आर चिल्ड. ओके, बिल्कुल ऑसम हो जाते हो तुम लोग, कुछ फोर्स नहीं लगता. बट व्हाइल एक्सेलरेटिंग तुम्हें एक बैकवर्ड फोर्स फील होता है. You can feel that because the acceleration is too high, so you feel that backward force, and that backward force is your mass into aeroplane's acceleration, which you feel on the back. ठीक है? Obviously, you can feel that better if you go to Dubai. Dubai में जो fastest roller coaster है, so that is my personal experience. The fastest roller coaster in the world. I forgot the name. It's in Ferrari World. तो वहाँ पे मैंने pseudo force बहुत ज़्यादा feel किया था. So again, you guys can try that also. It's super safe, by the way. Okay. So चलो. Now everyone, let's try to do this problem. So यहाँ पे जो mass है, when this accelerates, तो इस पे एक pseudo force लगेगा ma0, और ये कहाँ तुम्हें उतना ही लगाना है एक्सेलरेशन कि इट जस्ट रीचेस हियर, इट शुड नॉट फ्लाई ऑफ. ओके, तो ये यहां तक पहुंच जाए, मतलब यहां पे रेस्ट पे था, यहां पे भी रेस्ट पे पहुंचाना है. व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दिस? एनर्जी मेथड. फोर्स बैलेंस से मत करना, उसके भी तरीके होते हैं, बट अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. आई एम गोइंग टू टेल यू टू वेज हाउ यू कैन डू द this problem. One way is energy visualization. अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे बैठ जाऊंगा, because if I sit here, my dear students, I can very well understand what is happening on this. अब मैं इसमें pseudo force लगा सकता हूं. Now I can visualize better. अब मैं यहाँ पे बैठ गया तो मैं बोलूंगा कि इस पे आई एम ऑन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉट अ मूविंग फ्रेम. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो नहीं लगाते pseudo force, बट अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो लगा दो. तो इस पे ये फोर्स लग रहा है ma0. दिस इज द pseudo force. इसकी वजह से ही ऊपर चढ़ रहा है. दैट इज व्हाट यू विल सी. ओके, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये लग रहा है और mg भी लग रहा है. ओके, सो
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए नॉट. तो सिंपल सी बात है, ऑल यू हैव टू डू इज एनर्जी विजुअलाइजेशन. यहां पे इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनर्जी विजुअलाइजेशन, प्लीज गो एंड वॉच वर्क पर एनर्जी. उसी प्लेलिस्ट में tinyurl.com/JEE Physics में प्लीज वॉच वर्क पर एनर्जी. आई एम श्योर इट विल नॉट जस्ट गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, इट विल चेंज योर लाइफ. ओके, उसके 2 क्लासेस हैं, वो जरूर देखना. Okay, because generally all of us are very attuned to one thing, very bookish, work energy theorem. But energy visualize करोगे तो you will really love physics. अब यहाँ पे देखो, energy visualization में तुम क्या बात करते हो? Okay, यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पे रेस्ट पे है. Okay, यहाँ पे velocity 0 है, यहाँ पे रेस्ट पे है, फाइनली ये यहाँ पे भी रेस्ट पे आ जाता है. तो तुम क्या बात करते हो? ये जो फोर्स ने काम किया है, ओके, वर्क डन बाय दिस फोर्स की वजह से है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई. मैं बोल रहा हूं ये 0 पोटेंशियल एनर्जी है, ये जमीन है. यू कैन कंसिडर एनी लेवल एज 0 लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो आई एम कंसिडरिंग दिस. ओके, एनी लेवल मतलब एनी लेवल परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी. इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो. ठीक है, बिकॉज डिफरेंस ही देखना होता है, डिफरेंस ही देखना होता है. So now what will you say? Work done by this force is equals to increase in potential energy which will be mg into r. कितना ऊपर गया? R ऊपर गया. ये यहां से यहां कितना गया? R गया. Now the work done by this force is this force into the displacement along the force. ठीक है, F dot S होता है, राइट? F dot S होता है. वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, वैसे भी कर सकते हो, बट क्यों करना हो इतना सब कुछ? सिंपल है, इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो. ठीक है, सो व्हाट विल यू से? वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी m a naught into r. ठीक है, इज इक्वल्स टू mg r mr खत्म. a naught इज इक्वल्स टू g, खेल खत्म. b for best is your correct answer. अब इसके अलावा now apart from this my dear students, how can you solve this problem? Apart from this work energy theorem traditional way, work done by all the forces while you're sitting there is equals to delta ke. अब देखो delta ke 0 होगा because 0 minus 0 फाइनल माइनस, दोनों रेस्ट पे आ जाते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पे. तो ये खत्म हो गया. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज 0. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. कौन वर्क कर रहा है? एक ये वर्क कर रहा है m a naught r. एक ग्रेविटी वर्क करिए, नीचे लग रहा है mg along gravity, the displacement is r. okay, r. So again mg into r into cos 180 degrees या minus mgr. सिंपल सी बात है, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, mgr is equals to 0. सेम इक्वेशन, mr a naught is equals to g. Okay, so with this now let's move on to the next problem which is actually very simple, but I'm introducing that because generally graphs में अगर ft कर्व होता है तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो ft कर्व है तो सबसे पहली चीज, कभी भी ग्राफ गिवन हो तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना डायमेंशनली कि ग्राफ से क्या मिल सकता है. f इंटू टी करके देखो, f इंटू टी क्या होता है? इम्पल्स. ओके, मतलब एरिया इम्पल्स देगा. व्हेन यू डू दिस इंटू दिस, वो एरिया होता है डायमेंशनली. अगर f डिवाइडेड बाय t करते हो तो वो स्लोप होता है, dy by dx जैसे करते हैं ना, y by x. मतलब तो दिस बाय दिस डजंट मेक सेंस. तो बेसिकली क्या समझे तुम यहां से? यू अंडरस्टूड वन थिंग कि f इंटू टी से कुछ यूजफुल मिल रहा है. क्या होता है? f इंटू टी इम्पल्स होता है. f इंटू टी इज इम्पल्स इफ फोर्स इज कॉन्स्टेंट. वैसे हाँ, मतलब इफ इट इज टाइम वेरिंग, अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, इफ इट इज टाइम वेरिंग, और अगर इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगेन दिस इज अ बेटर वर्ड, इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इंटीग्रल एफ डी टी होता है. बट यहां पे ये एरिया में यहां से यहां तक प्लीज अंडरस्टैंड, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 6. ये जो एरिया है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एरिया हमें क्या देगा उसकी बात करते हैं. तो ये एरिया हमें क्या देगा? 0 और 6 के बीच में इम्पल्स देगा. ओके, तो लेट्स फाइंड आउट वो इम्पल्स है क्या. ठीक है, दैट इम्पल्स एज एन एरिया. अब ये नेगेटिव एरिया है, प्लीज देखो, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये -4 हो गया क्योंकि ये इसके नीचे है एरिया. ये एरिया कितना है? अब जल्दी से बात करो. ये अगेन मिस्टेक मत करना, ये 6 नहीं है, 6 - 2 है. ये 6 है, ये 2 है, तो ये 4 है. सो दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4. तो ये कितना हो गया? 16. नेट एरिया कितना है? नेट पॉजिटिव एरिया है. सो दैट पॉजिटिव एरिया इज 12. दैट पॉजिटिव एरिया इज 12. ठीक है, इंपल्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन इंपल्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन इंपल्स इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम. मतलब एक सिंपल इक्वेशन याद है तुम लोगों को? इफ यू सीन वन ऑफ माय मास्टर क्लासेस ऑन इंपल्सेस, इंपल्स को याद करने का सिंपल तरीका ऐसे देखो. अगर किसी बॉल को तुमने किक किया,
ओके, एक इम्पल्स वेक्टर दिया, जे वेक्टर दिया, ओके। इनिशियली ये बॉल कुछ वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है, vi से जा रही थी, ठीक है, vi वेक्टर से, ठीक है। अब इम्पल्स के बाद ये बड़े वेक्टर से जाएगी, vf वेक्टर से जाएगी ये, ठीक है। तुमने चलती भी वो बॉल को किक कर दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तुमने। तो बेसिकली यू कैन रिलेट मोमेंटम्स, मैं ये समझाता हूं, इम्पल्स कैन बी रिलेटेड विद मोमेंटम्स। इस इक्वेशन को याद रखना, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, एंड इट्स क्वाइट विजुअल। हमेशा इस चीज को विजुलाइज क्या करो कि यू हैड एन इनिशियल मोमेंटम, ओके, वेक्टर, एंड देन यू प्रोवाइडेड एन इम्पल्स वेक्टर। इम्पल्स वेक्टर डायरेक्शन भी है ना इसका, इम्पल्स वेक्टर इज इक्वल्स टू योर फाइनल मोमेंटम। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, तो दिस इज द मेन इक्वेशन दैट यू नीड टू नो। तो बेसिकली J इज PF माइनस PI, चेंज इन, समझ में आ गया? तो यस, तो J इज इक्वल्स टू PF माइनस PI, तो ये चेंज है, और बेसिकली इंक्रीज तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली गेन्ड विल बी द चेंज, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। इसके अलावा एक और तरीका होता है इसको करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज दैट अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस? ये FT कर्व है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई, तो ये डिवाइड एवरीथिंग बाय m, ओके। एरिया भी निकाल लेना, समथिंग डिवाइडेड बाय m, 12/m आ जाएगा तुम्हारा एरिया, है ना। एंड दैट विल बी, है ना, 80 ग्राफ में, 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है तुम्हें? 80 ग्राफ का एरिया तुम्हें v माइनस u देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है, बट ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू रीड सच ग्राफ्स, ओके। सो एवरीवन, नाउ लेट्स मूव ऑन। So this was more like a freebie. अब आगे देखते हैं। Now this is a good problem, and the only thing that intimidates us in this problem is the values. मतलब इतनी सारी springs हैं, इतने सारे masses हैं, but trust me, ये तक घटिया problem है। Again, I'll tell you how to tackle it, okay, side by side. तो इसमें problem को solve करना important नहीं है, ये देखना important है कि सर क्या कर रहे हैं। तो everyone please try to understand what I'm going to do. जैसे मैं कर रहा हूं उसको notice करना, okay? तो पहले ये दे रखा है कि कुछ तो तुमने रख रखा है इसको, कंप्रेस या जो भी है। इसमें सिंपल सा लिखा है देयर आर 4 मासेस लाइक दिस, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये गिवन है। अब उसके अलावा और क्या क्या गिवन है? उसके अलावा गिवन है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट्स, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूं मैं, 100 है यहाँ पे, 100 इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर। ये है 200, ये ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग है, ये और भी ज्यादा स्टिफ है, उस पर भी ध्यान मत दो अभी, ओके। दीज आर द स्प्रिंग कांस्टेंट्स, ओके। 1 2 3, अब ये भी लिख देता हूं, ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, ये 8 kg का है। उसके बाद इट्स गिवन द होल सिस्टम इज रिलीज्ड। अब ये नहीं बताया कैसे रिलीज्ड, अगर ऐसी पड़ा होता विदाउट नेचुरल लेंथ में तो कुछ नहीं होता, रिलीज करने के बाद ऐसे ही पड़ा रहता, ऑल द स्प्रिंग्स आर मस्त, है ना। बट ऑब्वियसली कुछ कंप्रेस्ड होगा या एलोंगेटेड होगा, कुछ तो है ना। तो इसमें बस ये दे रखा है कि वी रिलीज्ड इट समहाउ, ओके। सस्पिशन है बहुत प्रॉब्लम में, है ना। फ्रॉम रेस्ट ऑन दिस, अभी भी डरना मत, ये सबसे घटिया सवाल है, अभी देखना तुम लोग। आफ्टर सम टाइम मतलब छोड़ने के किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं वो लोग, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ 1 and 4 kg आर फाउंड टू बी 0, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ये जो दो ब्लॉक्स हैं आफ्टर सम टाइम, ये वो टाइम बोल देते हैं, ये वो टाइम है, ओके। एट दैट सस्पिशियस टाइम इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 है, इसका भी 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन एंड फोर्स भाई 0 एक्सेलरेशन 0 फोर्स, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। और इसमें यह भी दे रखा है कि इस इंस्टेंट पे, मेरे दोस्तों सुनो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इस इंस्टेंट पे द मिडिल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। एक और चीज गिवन है, दिस मिडिल स्प्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन इज गिवन, दिस मिडिल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 0.1 मीटर्स, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये कंप्रेस्ड है 0.1 मीटर से, तो लिख देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर्स, मतलब x मतलब इट इज कंप्रेस्ड, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं xc, एक मिनट, थोड़ी स्पेस की क्रंच है, सो विल राइट xc इज इक्वल्स टू 200, सॉरी 0.1, अरे यार रुको, हाँ, x इज इक्वल्स टू 0.1 और ये क्या है 1248। तो दिस इज द कंप्रेशन। अब कंप्रेशन, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी तो ऐसे फोर्स लगाएगी, कॉमन सेंस, बिल्कुल विजुअल रखेंगे। कंप्रेस्ड है तो ऐसे फोर्स लगाएगी, है ना, बाहर की तरफ। कितना लगाएगी ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, लिख दो। ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, कंप्रेस्ड है ना, तो ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी, विजुअलाइज करो, कंप्रेस्ड है तो कितना लगाएगी 0.1 इंटू 2 kx फोर्स होता है, 200 इंटू 0.1 तो 20 लगा रही है ये, 20 न्यूटन, है ना। खाली न्यूटन नहीं लिखते हैं, 20 लिखते हैं, है ना।
तो ये लगा रही है 20, ये भी लगा रहा है 20, दोनों साइड 20-20 लग गया। ये भाई साहब पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यहां पे तो लग भी नहीं रहा, तो ये नेचुरल लेंथ में होनी चाहिए, हाँ या ना बोलो, बिकॉज इस इंस्टेंट पे हमें निकालना है, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 8 and 2, 8 and 2 पे कमेंट करना है कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, करते हैं धीरे धीरे। तो अब ये इस पे गिवन है कि ये जीरो फोर्स है इन दोनों पे, तो ये नेचुरल लेंथ में होनी चाहिए, लिख दो यहाँ पे नेचुरल लेंथ, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये मस्त बैठी है स्प्रिंग इस इंस्टेंट पे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो इसका भी नहीं होगा नेचुरल लेंथ पे, ये भी पता चल गया। और ये भी अब देखो, अब इसकी बात करते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं हम, पहले का ऑलरेडी निकाल सकते हैं, बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड। अब ये जो 4 है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 है इसमें एक करेक्ट नहीं होगा, मल्टीपल करेक्ट होंगे, तो ये जो 4 है इसमें फोर्स 0 है, तो यहां पे 20 लग रहा है बच्चों, तो यहां पे भी 20 लग रहा होगा, स्प्रिंग की वजह से कुछ गिवन नहीं है इसका, तो इसका भी 20 लग रहा होगा। तो अगर 20 लग रहा होगा तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब तुम्हें पता है कि ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, ये फोर्स 20 लगा रही है। कब लगाएगी स्प्रिंग फोर्स? ऐसे, ये स्प्रिंग ऐसे फोर्स कब लगाएगी? जब ये कंप्रेस्ड होगी, मतलब ये कंप्रेस्ड है। अब इसका कंप्रेशन कितना है ये निकाल लो, इसका कंप्रेशन कितना होगा, ये 400 है, 400 न्यूटन पर मीटर है, तो चलो इसका कंप्रेशन निकालते हैं, इसको x1 बोल देते हैं, इसमें कंप्रेशन x1 है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड दैट कंप्रेशन, तो तुम बोलोगे 400 इंटू x1, देखो यहाँ पे 400 इंटू x1 इज इक्वल्स टू 20 का लगा रहा है, तो 20 का यहाँ पे भी लगाएगा, स्प्रिंग है, kx है ना, 20 का यहाँ लगा दिया, 20 का यहाँ भी लगा दिया। सो x1 की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 20 से जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू 1/20, 1/20 इज x1, बट वो जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। अब जल्दी से बताओ 2 पे कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों का एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg, 8 kg, 2 kg, 2 kg, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ दीज टू। कैसे निकालना है? सिंपल सी बात है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसका क्या होगा, है ना, ये फोर्स 20 लग रहा है, मास है 2, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घटिया सवाल है, एडवांस का लग भी नहीं रहा है सवाल। अगेन वी गेट इंटिमिडेटेड, हम छोड़ देते हैं ऐसे सवालों को, बट ये बहुत सिंपल है। तो ये ऑप्शन सही होगा, एक तो ये हमारा C फॉर करेक्ट सही होगा, ठीक है। 10, 8 पे कमेंट करते हैं, 8 पे फोर्स कितना लग रहा है, 20, है ना, और मास कितना है 8, तो 20/8 कितना होगा, 20/8, है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। 20/8 कितना होगा, यहां पे निकालो, 4 5 जा, 4 2 जा, 5/2, 2.5, तो 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, परफेक्ट फिट, A and C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप एवरीवन कुड फॉलो, बड़ा ही सिंपल सवाल था। ओके, सो नाउ लेट्स एक्चुअली मूव ऑन टू आवर चैलेंजर प्रॉब्लम। सो गाइस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। ओके, इसको कैसे करेंगे, तो एवरीवन टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर, A B C D, mg/2 tan थीटा। अब यहां पे ये गिवन है कि ये जो यहां पे एंगल है ना, ये थीटा है, मतलब यहां पे भी थीटा है, मतलब सिमेट्रिक सिचुएशन है, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग? टू बी ऑनेस्ट बच्चों, ये बहुत सिंपल सवाल है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट अगेन इफ यू डोंट नो द अप्रोच तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है। And if you do this on your own for the very first time, one thing I would like to say, your lateral brain is lovely. It is beautiful. Your lateral brain is beautiful if you can do this problem for the very first time, first attempt. Because first attempt में we have seen single digit rankers struggle in this kind of a problem. Okay? तो everyone, चलो let's get started. तो इसमें मैं बहुत आराम से explain करूंगा, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना और कुछ मत करना, ध्यान से सुनेंगे हम। अब देखा जाए तो एंड्स पे मैं बोलता हूं टेंशन इज T1, ओके, एंड्स पे सिमेट्रिक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे मैं बोलता हूं टेंशन इज T1, ठीक है। यहाँ पे कुछ और होगी, T2, T3, T4, है ना, और दोनों साइड लगेगी, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, है ना। तो यहाँ पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो टेंशन लगेगी वो T है, हमें निकालनी है, और यहाँ पे T1 लग रही है। तो पहले तो हम पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, पूरी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो पूरी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम में ये mg लगेगा, यहाँ पे लगा दो, ये एक mg लग गया, ओके। बीच के फोर्सेस T कैंसिल हो गए, बट एंड्स पे टेंशन लग रही है ना, ये नहीं निकालना हमें वैसे, T1, और ये हो गया T1, ठीक है। और ये कितने पे लगा, थीटा पे लगा, लग गया, ठीक है। तो यहां से कुछ निकल के आता है क्या, देखो यहां से एक चीज निकल के आती है कि T1
साइन थीटा, ओके, और ये होगा T1 cos थीटा, T1 cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी दो टुंगे लगा दो टेंशन के, इसको ये कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि इसको तोड़ा है हमने। T1 sin थीटा, T1 cos थीटा। तो ये दोनों तो भाई ये तो यूजलेस है, ये तो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो mg को बैलेंस क्या कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है T1 sin थीटा, 2T1 sin थीटा इज इक्वल टू mg। चलो एक इक्वेशन आ गया, बट इट डजंट हेल्प अस, हमें तो टेंशन यहाँ पे निकालनी है। अभी विल प्रोसीड, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। 2T1 sin थीटा, इससे डरना नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इज इक्वल्स टू mg। चलो एक अनमोल रतन आ चुका है ना, दूसरा अनमोल रतन विल कम व्हेन यू एनालाइज, क्योंकि हमें मिड पॉइंट में निकालना है तो तोड़ देते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, तो इसको मैं तोड़ देता हूं। अब इसको एनालाइज करते हैं। अब इसमें बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो m/2 है, तो उसका m/2g कहीं यहाँ पे लगेगा, फर्क नहीं पड़ता, हमें वर्टिकल फोर्सेस देखने ही नहीं है, हमें इस वाले केस में वर्टिकल फोर्स देखने ही नहीं है, हमें तो यहाँ पे टेंशन निकालनी थी। तो अगर हम ये दोनों बनाते हैं तो यहाँ पे t लगेगा, यहाँ पे t लगेगा, हमें यही टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो चलो इसको नहीं बनाते, एक ही को बनाते हैं। तो चलो एक आधे का बना देते हैं। तो इस पे क्या फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे मिड पॉइंट पे बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। किसी भी धागे को करके देख लो, मिड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रहेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंशन लग रही है T, इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, ठीक है। इसका वेट लगेगा कुछ तो m/2g, है ना, मतलब उसको बनाते नहीं है, लेट्स नॉट ड्रॉ दैट, है ना, कुछ तो इसका वेट होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ तो इसका वेट होगा mg/2, बट वो नहीं लिख रहे। यहां पे देखो क्या फोर्सेस लग रहे थे इस एंड पे एक लग रहा था T1 cos थीटा और एक लग रहा था T1 sin थीटा, ठीक है। तो ये इसको बैलेंस करेगा mg/2 को, जो वहां से आप वही आ रहा है, आधे को ड्रॉ करोगे तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और ये चीज इसको बैलेंस करेगी एक आधे एलिमेंट में, ये चीज। सो दिस इज द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहां से क्या लिखोगे T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू T, प्रॉब्लम खत्म। T1 नहीं चाहिए, डिवाइड करके गेट रिड ऑफ इट एंड सी क्या टेंशन आ रही है, जल्दी देखो, गेट रिड ऑफ इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम, प्लीज सी, व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम यू गेट 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू mg/t, जो तुम्हें निकालना था। कितना सिंपल है, टेंशन क्या आई, टेंशन इज इक्वल्स टू mg/2 tan थीटा। इजी, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, mg, ये केयरफुल रहना है यहाँ पे, mg/2 इंटू tan थीटा, ये सही है, mg/2 tan थीटा, बी फॉर बेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, ग्रेट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड अगेन। प्रोसीड क्या? सो अगेन एवरीवन प्लीज रिमेंबर, एवरी डे एट 6:30 come live and please attend these master classes live with all of us. Every day at 6:30 p.m. we will have something or the other for you. If you like this video, please comment, as I keep telling you, and this is something obviously straight from the heart. That I love you all and I read everyone's comment. Everyone, please write whatever you feel in the comments. If you like it, write a comment. If you have a better method to solve any problem, write it in the comment. But please do write comments because मेरा दिन अखबार से स्टार्ट नहीं होता है, अखबार बस अब मेरी बीवी पढ़ती है। I read your comments, ठीक है। So again reminding you, please do go and watch, especially आज तुम लोग ये जरूर देख लेना, मास्टर वर्क पावर एनर्जी, एंड देयर इज वन मोर मास्टर क्लास, हाँ ये वाला मास्टर क्लास। ओके, हियर वी हैव सम ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क पावर एनर्जी एंड सम हैंडक्राफ्टेड प्रॉब्लम्स आल्सो फ्रॉम माय साइड, जहां पे इनके चैलेंजेस होंगे। सो इफ यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन 1.5x और 2x विच इज पॉसिबल ऑन यूट्यूब। सो गाइज, प्रॉब्लम्स तो देख ही लेना, एंड नाउ दिस इज नमो कॉल साइनिंग ऑफ। बट बिफोर आई साइन ऑफ, बच्चों प्लीज रिमेंबर that do hit the subscribe button and press on this घंटा, ये घंटा जरूर दबा देना। Do subscribe to our channel if you haven't yet subscribed, and for all the subscribed students please go and check कि आपने ये घंटा दबा रखा है नहीं, because otherwise you don't get the notifications. Many of you say that हमें notification नहीं मिला था, तो ये इसलिए नहीं मिलता है, okay, otherwise you'll get notified by YouTube.
Apart from that, please, if it helped you, hit the like button and also share this video with as many friends as possible. We want this highest quality education to reach out to every student out there. This is Namo Call signing off, my dear students, and always remember that we were born for greatness and kindness and nothing less. है ना? And that's all. See you. Bye.